Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। फिर जानेंगे देश, दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। भारत पर 25% का टैरिफ लगाने और रूस के साथ कारोबार करने पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक तीखी पोस्ट करते हुए भारत और रूस पर निशाना साधा है। उन्होंने एक बार फिर भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश करार दिया। इसके साथ ही उसने रूस के साथ कारोबार को मुद्दा बनाते हुए लिखा कि इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं मृत हैं और ये मिलकर इसे और नीचे ले जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक। We're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मुझे खुशी है कि ट्रंप ने भारत की मरी हुई अर्थव्यवस्था पर सच बोला। Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट? ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है? क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये अमेरिका की बार्गेनिंग टैक्टिक्स है। You know, first of all, I think it's a very serious matter for us for a number of reasons. 25% plus an unspecified penalty for our buying oil and gas from Russia. It could take it up to 35, 45, we don't know how much. There's even talk of a 100% penalty which will destroy our trade with America. It may be just a bargaining tactic. As you know, the trade negotiations are still going on. And therefore, there is a possibility that in the course of negotiations, this may come down. If it doesn't, it will certainly damage our exports, because America is a very big market for us, where I think our exports alone are $87-90 billion. So if that is a dramatic drop, that will hurt us. Some estimates are already coming that we might end up losing 0.5% of GDP if we don't have the American market. On the other hand, if their demands are completely unreasonable, our negotiators have every right to resist. For example, we have about 700 million Indians who are dependent on agriculture. We cannot risk their livelihoods to make America happy. America has to understand our needs as well. Actually, our tariffs on America are not that unreasonable. It's about 17% average. And American goods are not priced that competitively that they can sell so much in the Indian market. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां के तेल भंडारों को विकसित करने का सौदा पूरा कर लिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका ने अभी अभी पाकिस्तान के साथ ये डील पूरी की है। इसके तहत दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के विशाल
तेल भंडारों को विकसित करेंगे, किसी दिन इस्लामाबाद नई दिल्ली को तेल बेच सकता है। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था। इसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। लगभग 17 साल बाद आए फैसले में जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। जज लाहोटी ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। यह भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया। मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। 2011 में केस एनआईए को सौंप दिया गया था। एनआईए ने 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी। केस में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदल चुके हैं। आरोपी सुधाकर धर चतुर्वेदी के वकील रणजीत सांगले ने कहा कि सभी आरोपी यूएपीए और अन्य धाराओं से बरी हो चुके हैं। ऐतिहासिक दिन है। आज मुंबई की माननीय एनआईए विशेष सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री लाहोटी साहब ने मालेगांव बम विस्फोट 2008 के मुकदमे के अंत में 17 साल के प्रलंबित मुकदमे के अंत में आज अपना निर्णय सुनाया है। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। पूरा फॉरेंसिक एविडेंस जो जमा किया गया था वो एक गलत तरीके से जमा किया गया, वो कंटामिनेट हुआ था। जो कि ये मामला पूरा बम विस्फोट का था तो कुछ एक बॉडी के अंदर बुलेट पाई गई, लेकिन उसके कोई शेल केसिंग्स नहीं पाए गए। इसका मतलब वहां पर फायरिंग हुई थी। वो फायरिंग होने के बाद वहां पर एक 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ हुई थी और वहां पर क्राइम सीन कंटामिनेट हुआ था। इस कंटामिनेशन के चलते जो सैंपल्स कलेक्शन हुआ था वो ठीक तरीके से ना होने के कारण फोरेंसिक एविडेंस जो सैंपल कलेक्शन किया था सीन ऑफ ऑफेंस से, उस पर भी माननीय न्यायालय ने कहा कि ये पुख्ता सबूत नहीं हो सकता। संसद के मॉनसून सत्र के 9वें दिन बिहार वोटर वेरिफिकेशन और अमेरिका के टैरिफ लगाने वाले मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर जो कहा उसे सबने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें बदले में यही मिलता है। Well, everybody has seen कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। पाकिस्तान के साथ भी इससे पहले प्रियंका सहित विपक्ष के सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर बिहार मतदाताओं से जुड़े स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता ऑफिस में बैठक की। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दल बदल को लेकर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मुद्दा देश भर में बहस का विषय रहा है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो ये लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद में दिए गए कई नेताओं के भाषणों का हवाला भी दिया। कोर्ट ने राजेश पायलट, देवेंद्रनाथ मुंशी जैसे सांसदों के भाषणों का जिक्र करते हुए कहा कि विधायक या सांसद की अयोग्यता तय करने का अधिकार स्पीकर को इसलिए दिया गया ताकि अदालतों में समय बर्बाद न हो और मामला जल्दी सुलझे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने यह भी दलील दी गई कि आर्टिकल 136 और 226, 227 के तहत स्पीकर के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश बहुत सीमित है। दुनिया भर में शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष 127 साल बाद भारत लाए गए हैं।
ये अवशेष उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा नामक जगह पर एक स्तूप की खुदाई के दौरान 1898 में मिले थे। इन अवशेषों को विलियम क्रॉक्सटन पेप्पे नाम का एक अंग्रेज अधिकारी अपने साथ ब्रिटेन लेकर चला गया था। इस साल इनकी हांगकांग में नीलामी की सूचना मिली। इस पर भारत सरकार नीलामी रुकवाकर इन्हें भारत लाई है। अंग्रेज अधिकारी विलियम क्लॉक्सटन पेपे ने 1898 में उत्तर प्रदेश में आज के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहा में स्थित स्तूप की खुदाई करवाई थी। वहां हड्डियों के टुकड़े, क्रिस्टल के पात्र, सोने के आभूषण और अन्य समर्पित किया गया सामान मिला था। ये सामान बौद्ध परंपरा के मुताबिक स्तूप में रखे गए थे। ब्राह्मी लिपि के शिलालेख से पता चला ये अवशेष शाक्य वंश की ओर से भगवान बुद्ध को समर्पित किए गए थे। शाक्य परिवार गौतम बुद्ध का ही परिवार था। अंग्रेज अधिकारी ने 1899 में अधिकांश अवशेष कोलकाता के इंडियन म्यूजियम को सौंप दिए थे, लेकिन उसका कुछ हिस्सा पेपे परिवार के पास ही रह गया था। ये सामान उनके निजी संग्रह का हिस्सा थे। ईडी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 करोड़ रुपए के लोन घोटाले की जांच में छापेमारी की है। ये छापेमारी पोर्ट ब्लेयर और कोलकाता के 11 ठिकानों पर की गई। ये कार्रवाई अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में हुए लोन और ओवरड्राफ्ट घोटाले के सिलसिले में हुई। जांच में सामने आया कि बैंक ने नियमों को ताक पर रखकर फर्जी कंपनियों को भारी मात्रा में लोन दिए थे। रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अब जनरल डिब्बों में भी आसानी से सीट मिल जाएगी। रेलवे ने इस संबंध में बड़ा अपडेट दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया कि भारतीय रेलवे ने बड़े पैमाने पर ट्रेनों में नॉन एसी कोचेस की संख्या बढ़ाई है। ट्रेनों में नॉन एसी डिब्बों की संख्या बढ़कर लगभग 70% हो गई है। इसके अलावा अगले 5 साल में अतिरिक्त 17,000 नॉन एसी जनरल और स्लीपर कोच बनाने के लिए एक स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग कार्यक्रम किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने अमृत भारत और नमो भारत रैपिड रेल जैसी ट्रेनों में भी नॉन एसी डिब्बे लगाए हैं, जिससे निम्न आय वर्ग को काफी फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय रेलवे 100 और अमृत भारत ट्रेनों को बनाने में जुटी है। नॉन एसी डिब्बों में यात्रियों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या अब 54 लाख हो गई है, जो कुल संख्या का 78% है। वहीं एसी सीटों की संख्या 22% है। देश में 5 साल में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने राज्यसभा में सांसद जोस मणि के सवाल पर बताया कि 2021 से 30 जून 2025 तक कुल 66 लाख से अधिक साइबर अपराध रिपोर्ट हुए। 2021 से 2025 के बीच इन अपराधों में करीब 900% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा 9,63,000 केस उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि कबूतरों के झुंड को दाना डालना सार्वजनिक रूप से परेशानी पैदा करने वाला है। ये मुद्दा जनस्वास्थ्य से जुड़ा है और सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर और संभावित खतरा है। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने पशु प्रेमियों की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मुंबई नगर निगम को दाना डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने डीएमसी को शहर के कबूतरखानों में कबूतरों के जमावड़े को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने और कड़े उपाय लागू करने का निर्देश भी दिया। दरअसल 3 जुलाई को इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीएमसी को किसी भी पुराने विरासती कबूतरखाने को ध्वस्त करने से रोक दिया था, लेकिन कहा था कि दाना डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से प्रतिबंधित रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद करने वाली 24 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें 6 भारतीय कंपनियां भी हैं। इनके अलावा चीन की 7, यूएई की 6, हांगकांग की 3, तुर्की और रूस की 1-1 कंपनी भी शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों की घोषणा की। मंत्रालय का कहना है कि इन कंपनियों ने 2024 में ईरानी मूल के 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उत्पाद यूएई के रास्ते मंगवाए। ईरान इस पैसे से न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा रहा है और आतंकी फंडिंग कर रहा है। मंत्रालय ने इसे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया है। ईरान पर 2018 से प्रतिबंध है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।